Our faculty in the most premier institutes of the country, isn't it? So we are only requesting you to make this a little bit of a interactive one. I am looking at you interrupting me anytime. Okay, I'm talking as a psychiatrist, as a learner, and also as a concerned Indian, as a concerned citizen about the challenges our youth are facing when they are transitioning from the phase of adolescence to young adulthood, and from young adult to moving on to certain aspects of life, which are certainly going to be immensely challenging. The personal, the family, the social, the occupational, and not to forget the fact that our coping skills are anyway inherent in our resilience. But that seems to be a little bit more challenging in a time when people are out to chisel out their careers. You know? So are we able to move ahead with the slides? Yeah, Yes, you sir. can go ahead, sir. I think Yes, sir. every 1 minute, just go ahead with it. If I want you to stay on a slide, you are I'll be requesting you sincerely. Otherwise, 1 minute you can move ahead. Youth mental health and well-being is not a new subject, but you'll be surprised that there is not much research both in the field of education and in the field of health also. The essence of our effort is to see that every student, I'm not using the word child, has a chance, equal opportunity, not to be equal, but to become different, have the variety, to realize whatever unique potential, infinite potential of the body, mind, and the spirit he may or she may possess. Well, sounds a very complicated definition, but I think the aim is very clear. Each according to his own ability and each according to his own infinite potential. The platform should be there, the programming should be there, the process should be there, and the impact outcome will not be a problem. So if we have the practice, the program, and the process of understanding mental health in young people from a educational perspective and not from a illness perspective, जैसा एक health का perspective होता है. Now we are also very learned all together because we are learning from each other. I honestly have to confess, ये जो हम बात कर रहे हैं आज, my understanding of community mental health, youth mental health has become clearer only by interacting with faculty, only by interacting with the teachers in our country. I understand and I have to confess that our tertiary care practices, where we come across people, patients, and see a lot of daily problems becoming disorders, and their names are plenty, in the books. But that has not been a great amount of teacher alone. The great amount of teaching lies in getting to know each other, both at the school level, the college level, the hospital level, the clinic level, and also what are the policies converging to the health and the education in our country. Is it important to look at the balance and the well-being today? It is important to look at where the goal of health is going and where the goal of education is going. You'll be happy to know when we run through the national new education policy. I think I often correlate it with the goal of the health also. If the workable goal, workable landmark where we all are walking together in health seems to be a well-rounded personality, a well-rounded physical, mental, social, and a spiritual well-being, and not absence of a disease. If that is health, I think education as a definition cannot be far behind. The purpose of education is to create a well-rounded individual, a well-rounded personality, a well-rounded individual who has the capability, if not the capacity alone, the capability to deal with the vicissitudes of life. Thank you, sir. Thank you. You may go ahead. So what you see here, ladies and gentlemen and honorable faculty, I assume that I'm repeating that we have learned a lot from you people, because you are the first contact care, not only the first contact person, you are the first contact care in the institutions of learning. In the one of the best universities across the world are in India. We know that. I don't go by rankings, any foreign rankings. I believe that connectivity, compassion, communication, and care, our connectivity with each other, our compassion. You see what is here.
970 million people are suffering now from diagnosable mental health conditions. यानी कि उनके एनालिसिस में अगर आप देखें तो कोई ना कोई मानसिक पीड़ा अब लग चुकी है, और ये बातें अभी कुछ 1-2 साल पहले की चल रही हैं. Now we are moving much ahead, and because we are huge in numbers, 1% in India would be about 1.4 crores, isn't it? So if we have about, say, you can see here, about 7 to 10% of young people, say below 25 years, suffering from major depression, then we are talking in crores only. We're not even talking in lakhs. And out of those, if self-harming, as Professor Fazim was just mentioning, if the people who are suffering and who probably needlessly go on to doing self-harming of any kind for that matter, that detail will come later, and I would love to know from your experiential learning. I think we all need to do something about it. The data is enough. We have research, enough data in our country. We can move ahead, sir. Thank you. We have enough data. We have good research in the country, like in most other specialities which you people are teaching. And we are proud. We are proud as a research nation that we all are now looking at peace, harmony within the mind also. We're looking at where the ambition lies, where the accomplishment lies in a student, and where the altitude of reaching high in life is there the aptitude, there the orientation to life, there the responsibility to one's health cannot be allowed to be left behind. There has been a gross disparity between what is to be done by young people and what is happening to their lives. I'm not again going by data, but we are also going by the fact that you all come across, there are certain issues which are about discipline, there are certain issues about actually suffering. So when there are sufferings, then I think we need to be a little bit more careful about whether there is a lack of or inadequate discipline about diet, sleep, exercise, hygiene, or yoga, whatever is advocated, or there is a inherent tendency to become symptomatic, become ill. Are we looking at both together? So, well, it is said that the way I look at my life every day is also equally responsible to create a platform where even a small area, if I start improving, the greatest sin is to think yourself weak. Well, that could be a statement, but why are we promoting surrogately, characteristics which people have started feeling that they cannot cope up with the ambition? Are we also simultaneously not able to understand that we are all different, each student is different, each member on the campus is so different in their perceptions, but the fact that diversity lies in the hope that we are going to be progressive, and that is the charm of diversity. We can go ahead, sir. Yeah. So also, what are the emerging? If we can have a look at the overview, a bird's eye view, these are some of the statements which have often been heard from the research, from the outcome. What are the gross areas where the young people find it difficult to bring in their social emotional learnings in adjustment to day-to-day life? If I've been conditioned to positive social emotional learning, positive mental health coping mechanisms, then it is a likelihood that I might be coming across certain areas where I need to use those, where I need to utilize my school education, school education in later life, say when I was a 17, 18-year-old, and then utilize that mechanism to take care of the balance, and the need to take care of so many other factors. Academic underachievement and academic competitiveness, the pressure about being what I wish to be is a natural pleasure. We all love to reach a target in life in the college and become accomplished learners. But somewhere down the line, while we are skidding through the ambition ladder, while we are running through the perception of being a topper in the class or in the university, and then I realize that there are areas which have been grossly neglected. So I need to somewhere sit back and see whether I can be modifying my lifestyle, modifying my approach to
how success is a different definition for all of us. Is happiness a different definition for all of us? The body image concerns the adjustment with the campus, with the friends, with the hostel, and also looking at with the demand of being what I wish to be and what are the resources available. What are the peer group influences in my institution? What are the peer support mechanisms in my institution? What are the ways I can actually be merging, converging, and also bringing in the diversity on the campus into a workable diversity where I don't become somewhere a victim of mental illness or a symptom. Now, these are the challenges the young people often are writing in their diaries, in their journals, and also looking at better mechanisms to bring about a great change. What is the whole idea about future apprehensions? On the right side, if you see the fear of failure, low self-esteem, maladjustment with the peer group, maladjustment with the people who matter the most in life. It could be my family and my faculty and my peer group. Now, these are top of the iceberg. Are we able to identify the flag signs? Are we able to identify those critical, very important critical landmarks where I can actually, deploy a sense of seeking help? Are we able to somewhere convince the young people that seeking help is so jubilant, such a festivity? Seeking help is not a deficiency. It is not symptomatic of an helpless or a weak person. I walk up to you and ask you that can we talk over half an hour? There are my concerns about my health, about my personal life. We do somewhere not realize in our differential mode of interaction on the campus, we actually send signals of huge stigma, huge stigma, condemnation, discrimination, and somewhere the fact that, oh, mental health issues, I think the person has gone crazy. The person has actually gone off the track. And many such languages and idioms and phrases are used from the school time. हम सबको याद है कि स्कूल में थोड़ा सा माल एडजस्टेड बिहेवियर होता तो हमें साइको बोला जाता था, हमें पागल बोला जाता था, और हमें कहीं ना कहीं ये बोला जाता था कि तुम तो अब खिसक गए हो. So whether it is the coming from the pedagogy, from our teachers, whether it's from a peer group, the fact is that some I would say a minuscule form of bullying has always been there. But that's part of life. We are growing through it. Can we have the mechanisms more straightforward, more stronger, and more faster to bring about acceptance? सबसे बड़ी challenge की बात acceptance की है. Are you accepting me the way I am? I may be different, I may be diverse, I may be a differential in the class or the campus, but I'm here with you. I'm here with you to bring about a change. Most of the cases, ladies and gentlemen, I see, yesterday I've seen, day before yesterday I've seen, it was a fortunate visit to AMU to come across such wonderful initiatives being taken up to have more endearing conversations on the campus, more established connections on the campus. I think all of you are in the league of that transformation. But the more we share, the more we bring about good practices to be learned from each other, I'm sure an iota of change, an iota of learning from each other can transform the nation. You know that. So why work in silos? Why work in islands? If you feel that, well, here is an idea. And let me tell you, I was in a last 4 days from the weekend onwards. One I've been in Arunachal, one I've been in Kerala, and today I'm back to Delhi. So what I've learned is the need and the concerns and also the ways to move around, bring about a change are really the same in the people who suffer unnecessarily. There's a whole lot of students I met in Arunachal. I met school students in Kochi, teachers and few faculty members in the university. And I was wondering, when we are having similar emotions, our needs in the 21st century information technology era, our needs in the globalized, industrialized, and the privatized world is almost the same, that we need to know each other. We need to get to understand each other, and we also need to walk together to bring about a better humanity.
Where are the difficulties there? Where are the difficulties in social emotional completion, social emotional changes which are so integral to us? So I remember an example, this girl telling us in Arunachal why campuses at every corridor in the hostel or in the building where you are, why we can't have those wonderful feelings boxes, the gratitude boxes, and how we can actually, they are not grievances boxes, they're not about complaint boxes, they're about ventilation boxes. Why give them a negative name? I sometimes I think jargon or the nomenclature spoils the whole interaction. So I think spreading happiness on a campus also implies that in a close confidence, without even revealing your identity, here we are together, we join hands, and there is a large percentage we know out of every 100 in our country at the moment, about 15 of them are needing help from support, care, communication. I told you, संवेदना की जो बात आ रही है वो सबसे बड़ी कमी है, विनम्रता की जो बात आ रही है वो सबसे बड़ी कमी है. To feel my feelings in your heart, and how we should understand that if you're going through a turmoil, it's about academics, about personal, about family, body image, about the looks, about transition into a new phase of life, about the boy-girl attractions. I think we all somewhere snub it away, compress it away, we shed it away, we evade it away, and we find it is extremely elusive to talk about these subjects. Things are better, but why not on the campus, on topics which are supposed to be out of the context but very important as a content? Well, people say it is out of the context. It is not. I would go one step further and say talking, sharing mind, mental health, and behavior, my own emotions of any kind, is curriculum. It is curriculum. It cannot be outside the curriculum. It is not syllabus. I'm sure we all understand it is not syllabus, but it is curriculum. The way I spend my day, the way people around me, whether I'm a PhD scholar or a postgraduate or an undergraduate, what is the transformation inside me? What is the biological rhythm within me? And where am I heading in terms of some difficulties which are going unnoticed? I told you in the beginning that about we are roughly taking 15% today. 15, it is more or less. There are up to 25% clusters in the country where out of 125 people need so much help that it is required as an urgent, I would say emergency. But no facilities are available. Counselors are not available. I personally believe, out of sheer experience now with all of you talking and sharing, that you are the best first aid counselor. I'm sure it's not about praise. We were discussing with Dr. Fazia also, if our faculty can become more endearing, more communicating, more reachable, more accessible, more available, not only in times of turmoil, I think in times of only those moments where we revise our approach to life and myself. And it can be done in a cluster of 10, 20 students and one faculty. The buddy system, the mentor and the mentee system. So let's celebrate that. There is a family. There is a family on the campus, and such 400, 500 families are there, where a faculty and a bunch of students, they live, grow, develop, share the time, informal time in the campus, in the playground, across the library, across the canteen, across the lounge in the university, and they all appreciate the fact that let not emotions be left behind. Let us come, share, divulge into the area where we can be bringing in confidentiality as our mantra. No condemnation, no discrimination, but appreciation. Let there be award. Let there be a surrogate award, appreciation for those who come forward to share that, hey, listen, I'm feeling miserable. I'm feeling weak. I'm not able to cope up. The people who have the courage to come and share with their good friends, their faculty, their counselors, I think are the people who are the strongest, and they need to be appreciated. Why the myth about the meek and the weak? Because they are vulnerable. If vulnerability is equivalent to feeling weak in the eyes of the other people, then it is a wrong perception, a wrong inference.
Vulnerability is not weakness. Vulnerability needs help, both from the self and the people around. And that is why I think we have shunned away the idea about coping with better skills like self-awareness, empathy, critical thinking. Now, these are the life skills which are eloquently taught in the school. है कि नहीं? अगर स्कूल में लाइफ स्किल्स के मुद्दे हैं, why not in the college? I was visiting a couple of IITs, and as ma'am said, MNIT, I was so happy to hear from students. They are wanting to know what other activities can we do, what other activities the faculty can be involved, how we can have a faculty-student partnership which moves out to the home also, and why not have a family and the campus partnership for better social emotional living. So let's call it social emotional living rather than achieving. But we are not living that. We are living intellectual lives. We are compounded by the fact that there are targets to be completed, there are landmarks to be completed, there are milestones to be achieved in terms of my literacy, my degrees, and the whole paraphernalia about getting a placement and a package. Well, it is so important. There's no doubt that placement and package and process of getting more accomplished in the higher education is most important, but not at the expense of losing touch with myself, not at the expense of losing touch with the people who can be my partners in emotional action for life, my partners for social emotional well-being. We understand that we are away from home, and that is a time in life that homebound young people find it very difficult to spend so much of time at home with the elders, with our other family members. We know because the academia is so heavy on them, and they need to be passionate about it. But the fact that let's make it non-negotiable. There are certain pro-social, there are certain pro-socio-emotional parameters which the discussions are going on across the country. You are knowing how the MMTCs and the CFIs, the higher education institutions which are centrally funded, are taking up such wonderful projects on positive mental health and building up resilience. There are conclaves going to happen. There is a conclave coming up in IIT Hyderabad. You all kindly do participate. Why? Because your participation is the process of taking this forward. And your good practices, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या और कर सकते हैं, आपके आइडियाज और क्या हैं कि हम अपने आप से दूर ना हो जाए. जब इंसान खुद से दूर होने लगता है तो पढ़ाई या करियर या जॉब कैसे करीब आएगा, और अगर करीब आएगा भी तो उसका मीनिंग बहुत फीका और शैलो रह जाता है. We have come across so many young people who are, by the tangible measures, by the measurable measures, very, very successful. And you can see this, the various dimensions of social emotional learning. I'm only showing it because this is not a theoretical discourse. These are areas we can develop into many more here. But these are non-negotiable. Our social awareness, my self-awareness, my managing the self, my regulating my own life. How can I regulate better diet, better sleep, better exercise? There's nothing ideal. But we need to regulate. If the body is not able to cope up with my day-to-day demand in life, then I'm going to suffer. आज आपको मैं ये बता दूं कि कुछ लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं जो बड़ों में, हमारे कंट्री के रिटायर्ड पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं है, यंग लोगों में सबसे ज्यादा हैं. Are you able to recall one of them, two of them, three of them? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. If I can शुगर बीपी, आप बताइए कौन सी वो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं जो 15 साल से 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा है. हाँ जी. ब्लड प्रेशर एंड शुगर्स, डायबिटीज. ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू. बट सर क्यों होना चाहिए? डायबिटीज एकदम अचानक 15 से लेके 35 साल की उम्र में पहली बार जिंदगी में क्यों आ जा रहा है, अगर फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है? ड्यू टू सम बैड हैबिट्स एंड बैड रूटीन. ओके मैम.
सर ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आ जा रहा है। सेडेंटरी दादा लाइफस्टाइल। जैसे जितेंद्र साहब, जैसे लेट ज्यादा लाइफ स्ट्रेस का young वजह सुबह लेट चिंता। उठते हैं। सर भाग दौड़ के में More ओके stress. गुड। रात स्ट्रेस की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है सर। रात को बहुत देर ओके तक सर। जग खाली करना, स्ट्रेस लेना, मॉर्निंग Because में of एक्सरसाइज ना करना, non-communication बहुत अच्छा। लाइफ स्टाइल की वजह से। चलिए लाइफ एक तो बाहर ये, का जंक हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए ना। का जंक फूड खाना जैसे सर वो भी बहुत हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर तो रीना मैम प्रॉपर आपने हम बहुत बहुत सही कहा आपने। इनफैक्ट रीना मैम जो बता रही हैं, मैं आपसे ये बता दूं, थोड़ा याद रहेगा कि मैदा, आलू, चीनी और तेल, यस सर, मैदा, आलू, चीनी और तेल हमारे आज की बीमारियों के प्रतीक बन गए हैं, सिंबॉलिक हो गए। ये जो बीमारियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे देश में, आज से 15-20 साल पहले मानते थे कि ये केवल यूरोप और अमेरिका में ही होती हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। आज हम उसके कैपिटल बनने जा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे, मैं और बता दूं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, यानी कि जो कीटाणु से नहीं होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से नहीं होते हैं, जो वैसे ही काफी मशहूर हैं देश में, है कि नहीं? डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सब बहुत ही मशहूर हैं क्योंकि इतने बड़े आंकड़े होते हैं। बरसात के टाइम में, सावन के टाइम में, सर्दियों में अलग आती है। लेकिन लेकिन चैलेंज ये आता है, अगर नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां भी, जिसमें मेंटल हेल्थ बहुत ही आगे पहुंच गया है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो कीटाणु से नहीं होते हैं, जो इन्फेक्शन से नहीं होते हैं, हमारे सोच, हमारी समझ, हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं, जैसे हम जीवन बिताते हैं। आपने बता दिया, बहुत अच्छा बताया। एक इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मुझे डायबिटीज पहली बार जिंदगी में हो रहा है और हमारे मदर, फादर, ग्रैंडफादर किसी को नहीं था, ये तो आपने बता दिया कि हमारी दिनचर्या से हो रहा है, हमारे जलपान, हमारे आहार की वजह से हो रहा है, जो गलत है। ठीक है, अब इसके साथ जुड़ी हुई और बीमारियां फ्री में मिलती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, क्या ये जुड़ नहीं जाती हैं फिर? तो यंग लोगों को हेल्थ एजुकेशन के आधार पे ये पता ही नहीं है कि एक हुआ तो साथ साथ 4 बीमारियां और फ्री मिलती हैं। बिकॉज अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो आप कहते हैं ना, देखिए अगर हम इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो अगर कार्बोरेटर खराब हो रहा है तो सारा सिस्टम गाड़ी का खराब हो गया ना। तो एक शुगर खराब हो गई, हमारा कार्बोहाइड्रेट खराब हो गया, तो मानसिकता का सोच समझ भी खराब होना शुरू हो जाता है। आज आप देखिएगा, आप नेट पे पढ़िएगा, छोटे बच्चों में, सबके घरों में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, आप गूगल में देखिए कहीं जाके, जो देशों में, जो कल्चर्स में जंक फूड का, फास्ट फूड का, जैसे डॉक्टर रीना बता रही हैं, आपने बताया, जितेंद्र साहब काजी ने बताया, वहां पे छोटे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि चंचलता, एक जगह टिक नहीं बैठना, पढ़ाई नहीं कर पाना, ध्यान नहीं दे पाना। मदर, फादर और टीचर कहते हैं ये बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप भी खुद देखते होंगे, कॉलेज में भी कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अस्थिर हैं, रेस्टलेस हैं, चंचल हैं, एक जगह टिकना मुश्किल है, और वही बच्चे अक्सर नशीली पदार्थों का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं। जैसे मैं अगर बहुत रेस्टलेस हूँ, अटेंटिव नहीं हूँ, और मेरे हिस्ट्री है कि 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में भी मैं ऐसा था, चांसेस आर कि मैं स्मोकिंग ज्यादा करूंगा, क्योंकि मेरे को ब्रेन की जो ओवर चार्जिंग है ना, ज्यादा चार्जिंग है, रेस्टलेसनेस है, उसको थोड़ा शांत करना है। तो देखिए आदत कहाँ से कहाँ आ गई। माइंड हमारा जलपान की वजह से, आहार की वजह से, जो पौष्टिक आहार नहीं है, और मैदा, आलू, चीनी, तेल, यहाँ तक के अगर आप पूछे तो बच्चे, स्कूल के बच्चे आजकल फ्रूट नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, और बचा ही क्या, फिर ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं। और जो जिद होती है वो कॉलेज में जाकर कई कई लक्षणों में दिखाई देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक बड़ा मसला है कि पूरा हफ्ता 2-3 बजे रात से पहले सोना ही नहीं है। अगर पूरी रात, हमारा ब्रेन तो पूरा इंजीनियरिंग है जी, हमारा ब्रेन मशीन है,
वो चाहता है कि 11 से 4 बजे कम से कम, 11 रात और 4 बजे सुबह कम से कम मुझे थोड़ा आराम दे दो, नहीं तो ये ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अंदर से जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो बॉडी में फैल रहे हैं। यंग बच्चों में हम देखते हैं कि एंटासिड टैबलेट्स खा रहे हैं। आपने कई देखे होंगे, पहले होता था कि चलो भाई 75-60 साल की उम्र में दबा के एंटी एसिड खाओ, दर्द की गोलियां खाओ, डकार आते हैं, मोशंस नहीं आते, कॉन्स्टिपेशन। अब ये सारी दवाइयां हम देख रहे हैं कॉलेज के बच्चों में इतनी ज्यादा हैं। यानी कि लाइफस्टाइल, खाने पीने का, सोने का, एंड नो एक्टिविटी, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, गेमिंग, बाहर की गेम, मैं वीडियो गेम नहीं कह रहा हूं, वो तो एक अलग पीड़ा और बीमारी है, लेकिन पसीना छोड़ने वाली बात। मुझे याद है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार जब युवा वर्ग से वार्तालाप करते हैं, मन की बात में भी बताते हैं, और जब फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ये कहा गया था कि भाई हमारे युवा वर्ग में एक बार दिन में बाहर कुदरत में, नेचर में जाके कम से कम पसीना छूटना चाहिए। आप बताइए, आपके घरों में यंग लोग हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदारों में हैं, आप देखिए कितने बच्चे हैं जो सांस चढ़ती है, भागते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, खेल के मैदान में कम से कम चलो खेलने की बात दूर, भाग लो। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये एक इकोसिस्टम का फ्रेमवर्क है जी। दिस इज अ फ्रेमवर्क दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड how are we looking at university mental health, how are we looking at mental health on the campus। 4 लेवल पे अगर आप ध्यान से देखें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय टीचर्स और फैकल्टी जो यहाँ पे आप अपना कमेंट इस पे दीजिए कि कौन से लेवल पे हमारे देश में कमी है, जहां पर युवा वर्ग और फैकल्टी दोनों को मदद की जरूरत है। एक तो आप लेफ्ट में देखें कि कौन इन्वॉल्व है होना चाहिए और इंटरवेंशन किस लेवल पे होना चाहिए। अगर हम पूरे कैंपस में एक हेल्दी हैप्पी कैंपस बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम हाई अचीविंग कैंपस, हाई सक्सेस कैंपस, वेरी हाई प्लेसमेंट एंड पैकेजेस कैंपस, लेकिन क्या हम दिनचर्या, सोशल इमोशनल लर्निंग, शारीरिक स्वास्थ्य, क्या ये चीजों से भी हम दूर हैं क्या? तो ये लेवल आप देखिए, लेवल 1 2 3 4। आप बताइए कि कौन से लेवल पे हम सबका होमवर्क आज बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा है। प्लीज आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सर, प्लीज गो अहेड सर। गोस्वामी साहब। सर सेकंड वाली है। सेकंड। ओके, वेरी गुड। सेकंड The सर, second one, mental health, knowledge, attitude and behavior. राइट। क्योंकि ये यहाँ से जो लोग निकलेंगे वो सबको किसी न किसी रूप में मतलब तैयार करेंगे। जी तो जी, ये बहुत बड़ी बहुत लॉबी है। इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन अब आप भी बताइए कि मेरा रेगुलर जो सिलेबस मुझे पूरा करना है, और हमारे टीचर्स को, हमारी फैकल्टी को रेगुलर जो लेक्चर्स पूरे करने हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए हैं, माय लर्निंग लेसन्स आर देयर, इसको हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्यों ना लें? जो मेरे क्लास में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम रोजाना इन बातों की चर्चा थोड़ी और क्लास में क्यों ना करें? काइंडली माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा सर, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अंजलि मैम, प्लीज म्यूट योर माइक। आप माइक जरा म्यूट कर लीजिए अंजलि मैम। अगर आपको बोलना है, काइंडली डू शेयर योर थॉट। क्या नाम है पूरा? खंडूरी, तो उसकी बीसी खंडूरी की डॉक्टर अंजलि मैम, काइंडली जरा अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अंजलि मैम, may we request Dr. Anjali ma'am to kindly mute your mic? Okay, thank you. Yes sir, please go ahead sir, बताइए गोस्वामी साहब। Anybody else? ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंटल हेल्थ का नॉलेज और जो एटीट्यूड है उस पर लगातार वर्कशॉप, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और लगातार वार्तालाप आपके कैलेंडर में, एल्मनाक में, और वीकली या मंथली जो हमारा एकेडेमिया है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है। इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज
that this can be for all the faculty, all the students and even volunteer family members. इसी पर अभी चर्चा चल रही है, इसी पर करिकुलम में थोड़ा इंटीग्रेशन होने वाला है। अच्छी बातें ये हैं कि आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे जहाँ पे MMTC सेंटर्स भी हैं, वहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। बट आपसे निवेदन है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड प्रॉब्लम, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ड्रग अब्यूज है, डिप्रेशन है, कैंसर है। मैं रिपीट करता हूं, अब चाहें तो नोट करें कि ये जो लाइफस्टाइल की 7-8 बीमारियां हैं वो हमारे युवा वर्ग पे एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़े हैं अब, और वो आ चुके हैं हमारे देश में। ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज, न्यू डायबिटिक पॉपुलेशन जहां पे कोई फैमिली हिस्ट्री ना भी हो, ठीक है, खाने का लाइफस्टाइल और नो एक्सरसाइज, ये सब बातें उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब रही बात और कौन सी बातें हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ, जहां मेडिकल मोटापा मतलब वेट इतना ज्यादा होना कि कई बार हमें मुश्किल हो जाता है इवन सोचना कि हम अपने आप की हेल्थ को कैसे संभालें। यही बात है कि डाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी, रॉन्ग डाइट एंड लैक ऑफ एक्टिविटी। और फैमिली हिस्ट्री में देखें तो कोई ऐसा मोटापा है नहीं, तो वो इलाज भी बड़े मुश्किल से होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की क्षमता जो होती है वो ये लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में इंसान फंस जाता है फिर, जो आपने खुद कहा अभी। तो थायराइड के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। जब स्ट्रेस होता है, जरूरी नहीं है कि थायराइड मेरे में फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए। कई यंग लोग आपने देखा है हार्मोनल प्रॉब्लम्स जब होती हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। एक बड़ा मशहूर एक स्ट्रेस हार्मोन है, आप जानते ही हैं, कॉर्टिसोल के नाम से। कॉर्टिसोल बुरा नहीं है, हमने कॉर्टिसोल को बुरे लेवल पे पहुंचा दिया है क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो बॉडी में सीक्रेट होता रहता है। एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है, जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ सिनेरियो। सो हम कॉर्टिसोल को, एड्रेनलिन को थोड़ा काम रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सोशल कम्युनिकेशन, वी हैव लाफ्टर, वी हैव स्माइल्स। हम तो ऐसे स्माइल करते हैं जैसे उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से आजकल इंसान खुशी को जश्न मनाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने आसपास, अपने लेक्चर्स में, अपने इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, कैसे करते हैं? आप ह्यूमर को लेके आते हैं, आप एक कामनेस, एक ठंडापन क्लास में, एक प्रेशर को अवॉइड करके अलग रख के आप एक तरीका कोई अपनाने की कोशिश करते हैं? जरा प्लीज कोई अपना तजुर्बा शेयर करिए ना, बताइए। यस सर, क्लास में पढ़ाते गुड मॉर्निंग सर। बताइए मैम, प्लीज गो अहेड। क्लास में सर जब हाउ डू यू, हाँ तो बताइए मैम। उसमें क्लास के बीच में 15 मिनट्स या हाफ आवर की जब क्लास हो जाती है सर, तो उसके बाद मैं ब्रेक देती हूँ बच्चों को, और उनसे कुछ उन्हीं से पूछते रहते हैं कि आपको क्या है, मतलब उनसे डिस्कशन टॉपिक का नहीं होता, अदर का होता है, अपनी क्लास का नहीं मैं फिर किसी दूसरी टॉपिक पे बात करने लगते हैं, या किसी फंक्शन का कोई प्रोग्राम था या आने वाले कोई फंक्शन है उसके बारे में बात करने लगे। बहुत सारी चीजें होती है सर, सेलिब्रेशन वाली हुई, या जैसे अभी दशहरा आ रहा है, क्लासेस के बाद जब मैं क्लास लेती हूँ तो जरूर पूछती हूँ आप लोगों ने दशहरे में क्या किया। इस ढंग से सर माइंड डाइवर्ट कर देते बिल्कुल से एकदम से, और फिर 5 मिनट बाद फिर सर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और यही तरीका होता है कहीं ना कहीं एक निकट इंसान के गतिविधियों को समझने का। वी आर एक्चुअली हैविंग पॉवर्टी ऑफ इमोशनल कनेक्शन। लोगों के पास डिनर के टाइम में घर में साथ बैठ के बात करने का नहीं फुर्सत है आजकल। तो आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया दैट अगर आपका डर भी खत्म होता है थोड़ा सा, बच्चे फिर अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, पूछते हैं। अदरवाइज वो जब स्ट्रिक्टनेस होती है ना तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते फिर। इसलिए बहुत पढ़ाते वक्त थोड़ा सा हम उनको इजी फील कराते रहते हैं कि आपके कोई भी चाहे सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो, चाहे आपका भी अगर कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो बच्चे बताते हैं फिर। बहुत अच्छी बात। कभी कभी मैम देखिए, सारा पर्पस जो अभी आप देख रहे हैं कि फैकल्टी ओरिएंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि
बच्चा एक बड़ा होकर एक युवा वर्ग बन के, किशोर अवस्था से युवा बन के जो आपके पास आता है, वो लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना कहीं आप में, आपके दर्पण में वो अपने माता पिता को भी ढूंढता है ना, वो आपके दर्पण में आपके गुरु को भी ढूंढता है, अपने गुरु को, जो बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है। तो हम लोग जब कॉलेज पहुंचते हैं तो वर्तमान परिस्थिति में हम गुरु भी ढूंढते हैं और माता पिता भी ढूंढते हैं, क्योंकि घर से कई बार हम हजारों मील दूर होते हैं कैंपस में। तो कहीं पर जो आपने बताया उदाहरण, ये कई बार पढ़ाई से ज्यादा कीमती हो जाता है, और आपको बाद में इसका परिणाम भी दिखाई देता होगा जब बच्चे चले जाते हैं अपना डिग्री लेके, या वो आपको याद भी करते होंगे। सर बिल्कुल याद करते हैं और कहते हैं कि ये आपकी पढ़ाई, तो हम बच्चों से कह भी देते हैं बेटा पढ़ाना, जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक आपको बुक में भी मिल जाएगा। कभी कभी सर उनको मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, तो क्लास में हम कभी कभी उनको एक छोटा सा सेशन कर देते हैं कि मॉरल क्या है आज की, आपको आपके पेरेंट्स यहाँ तक भेजे हैं आपको पढ़ने के लिए। कोई बच्चा जैसे सर होते हैं सर इतने सारे क्लास में एक आध बच्चा होता है जो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब करता है, फिर थोड़ी सी क्लास उनके लिए भी लेते हैं, बेटा बाहर से आए हो, पेरेंट्स भेज रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, उनसे Right. सोचो क्या सोच के भेजे हैं और तुम यहाँ पे ये कर रहे हो। तो सर 5-10 मिनट का मेरी क्लास ऐसे हो जाती है। मतलब आपको इशारा मिल जाता है कि वो आप में एक गुरु ही नहीं बट एक जज्बाती सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, और आप उनको दे भी देते हैं। आपको सर वो अपना तजुर्बा आपने शेयर किया मैम, मैं यहाँ पे औरों से भी पूछना चाहूंगा। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good रीना जी morning. बता I रही am है this उसके ऊपर, Snehata. प्लीज गो अहेड। Yes, sir. I am Snehata from Lucknow. सर मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे बीए के स्ट्रीम में आते हैं जो साइंस से भी होते हैं और अदर स्ट्रीम से भी होते हैं, तो कई राइट बार वो राइट टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को। तो हम जैसे मान लीजिए मैंने मार्क्स को पढ़ाया, तो मार्क्स को पढ़ाते वक्त अपने आप में ऐसे ऐसे हैवी शब्दों का यूज करते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर हम राइट उसको किसी लिटरेचर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी फिल्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे उससे कनेक्टिंग फील करें और उनको लगे कि ये विषय मतलब मैं व्यवहारिक बना सकता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि बस हमने च्युइंग किया और एग्जाम में जाके उसको वोमिट कर देना है, ऐसा नहीं, बल्कि उसको बहुत बड़ी इंटरडिसिप्लिनरी बात है। बनाते हुए बहुत सारे सब्जेक्टों से जोड़ के और उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए। जरूरी नहीं है कि एक विषय को पढ़ने के लिए सिर्फ उस विषय के नजरिए से देखा जाए, बल्कि उसको अन्य तरीकों से भी देखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें मटेरियलिज्म की, अगर हम बात करें कि भौतिकतावाद दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया है और लोग उससे लव को भूल जा रहे हैं, लोग उसको अपनेपन को भूल रहे हैं, अलगाववाद आ रहा है, एलियनेशन आ रहा है बच्चों के अंदर एक या लोगों के अंदर, तो उसको हम जोड़ सकते हैं एक डोवर बीच की एक लाइन है कि लेट अस बी ट्रू इन लव। तो और या राइट उसको जोड़ सकते हैं हम मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ से, कि वो एम्बिशियस इतना रहती है कि वो भूल जाती है कि किस तरीके से वो किसी की हत्या कर देती है। या उसको हम जोड़ सकते हैं एक मूवी है जिस्म 2 से। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि फिल्म देखना या गाना सुनना या स्टोरी पढ़ना इट्स नॉट ये केवल फन के लिए नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने सब्जेक्ट्स को भी जोड़ सकते हैं उससे। तो इस तरीके से पढ़ाने से वो टॉपिक उनको बोरिंग भी नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होते हुए भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और कहीं ना कहीं हमें भी ये ध्यान देना चाहिए अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त कि सिर्फ हम विषय को सिर्फ विषय के रूप में ना पढ़ाएं, बल्कि उसके अन्य विषयों से जोड़कर उसको पढ़ाने के काम करें। थैंक यू सो मच मैम। आप अभी जब ये बात विस्तार रूप से बता रही थी, देखिए आप कितने अच्छे टीचर हैं, रश्मि मैम हैं, आप लोग सब हैं, रीना जी हैं। आपने हमें 2 मिनट के लिए हमारे स्कूल पहुंचा दिया। मैं सोच ही रहा था कि हमारे जो अंग्रेजी के टीचर थे वो जूलियस सीजर पढ़ाते थे, और वो शेक्सपियर का होता था उन दिनों में हमारे साथ। यस सर, यस और सर। वो कभी भी उन्होंने क्लास में नहीं पढ़ाया। वो कहते थे चलो भाई, अगर कोई प्ले के बारे में, कोई डायलॉग वाला जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है तो ऑडिटोरियम में चल के एक्टिंग करो। तो आप बताइए कि आज तक हम वो पंक्तियां जो जिंदगी में लागू हैं वो भूले नहीं है। जैसे आपको याद होगा, आपने लेडी मैकबेथ का बताया, तो मैं बता दूं आपको, जैसे अपना एंटनी और जूलियस सीजर बड़े अच्छे दोस्त होते थे, है ना, लेकिन उनके यस बीच सर, में यस सर। वैर पैदा करने वाले, उनके बीच में वैर पैदा करने वाले बड़े महान थे उस किताब में तो दिखाया जाता, तो उस पर वो चर्चा करते थे वर्तमान दोस्ती के ऊपर, किशोरों के बीच में दोस्तियां कैसे बदल रही हैं। आप देखिए कहां से कहां टॉपिक ले गए। वो किताब थी जूलियस सीजर की, और आज की वर्तमान दोस्ती के ऊपर ले आए, और फिर बोले भाई चलो मोहन और रघु, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ आगे चल के 10 साल बाद तुम्हारी दोस्ती कैसी रहेगी। तो पूरा उसमें मुझे अब याद आता है कि पुणे ने तो अनजाने में मेंटल हेल्थ पूरा कवर कर लिया।
तो एग्जैक्टली सर, ये एग्जैक्टली। चीज बड़ी है ना। तो आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल देके, जो मार्क्स का है या लेनिन का है, ये बातें कितनी अच्छी है कि आप एक ग्लोबल पिक्चर अपने आप को इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी उसको ग्रहण करना शुरू कर देता है। क्योंकि हर बच्चे में मैं सोचता हूँ मैम, कहीं ना कहीं एक बहुत एम्पावर्ड इंडिविजुअल होता है। वो कहीं ना कहीं प्रस्तुति के लिए रुका हुआ रह जाता है और दब जाता है। उसकी प्रस्तुति जो है वही तो आपने निखार ली। फिर जैसा रीना मैम बता रहे थे अभी, कहीं ना कहीं हमें उनको बुलवाना है। अगर बोल भी नहीं सकते, उनके आई टू आई कॉन्टैक्ट से उनको हमें रीच आउट करना है, उनके दिल तक पहुंचना है। यहाँ तक कि आप तो इतने एस्टेब्लिश्ड अध्यापक हैं, आपने कई बच्चे देखे होंगे, हम क्लास में उनको एक बार देख लेते हैं तो उनका दिन बदल जाता है। कहते हैं आज मैडम ने, आज सर ने मेरे को देख लिया कम से कम। नहीं तो उनके फेवरेट होते हैं 5 बच्चे जो सामने बैठते हैं पढ़ने वाले, जो हम लोग पढ़ाकू कहते थे। बट लेकिन आज है कि भाई देखो 40 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, सबको आज मैडम ने एक बार अपनी नजर से देखा है। और आज स्माइल भी क्लास में इतना अच्छा रहा कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा कटेगा हमारा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ग्रैंडफादर फादर घर में अगर आज खुश मिजाज में है तो सबका दिन अच्छा कटता है। तो क्या हम वो पारिवारिक माहौल, एक थोड़ा सा और कष्ट उठा के, थोड़ा मेहनत करके एक पारिवारिक माहौल, क्या अपने क्लासरूम में, क्या अपने हॉस्टल में, क्या अपने कैंटीन में या लाइब्रेरी में नहीं ला सकते हैं? ग्रीटिंग्स कम हो गई हैं। जरूरी नहीं है मैं 3rd ईयर का हूं या एक 1st ईयर का है तो हमें हेलो और गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा कट रहा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम दूसरे दूसरे सालों के हैं। तो ये थोड़ा चर्चा में आया है और ये बच्चे बता रहे हैं। जो जो रिसर्च अभी हो रही है, कुछ सर्वेस हो रहे हैं, उनमें कहा है कि कैंपस में वार्तालाप हम कोई दोस्त से क्यों करें, आते जाते जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, दूसरे फैकल्टी के हैं और इंटर फैकल्टी है, इंटर स्टूडेंट हैं, कहीं पे हम खुशियां बांटते क्यों नहीं है? हम ये जो एक पॉजिटिव स्माइल है ये क्यों नहीं बांटते हैं? आपका कमेंट इस पे, किसी का भी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर एक और मैं जी वाकया आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पीएचडी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेट यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है, जहाँ पे 50% बच्चे जो है फिजिकल चैलेंज्ड हैं। तो अच्छा। मैंने वहां पे एक चीज फील किया है सर कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात करने में कतराते हैं, आंख चुराते हैं। जैसे आपने बोला कि हम फर्स्ट ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर को गुड मॉर्निंग कैसे बोलें, या सेकेंड ईयर के हैं तो थर्ड ईयर को गुड मॉर्निंग कैसे बोलें। तो ये जी। मैंने फील किया है वहां पे। लेकिन जो बच्चे डिम एंड डेफ हैं, जो बच्चे वहां पे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो बच्चे दूर से ही देखते थे तो इस तरीके से भागते हुए आते थे। वो देख नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, फिर भी वो क्या इस बात। तरीके से भागते हुए आते थे जैसे लगता था कि कितनी बातें हैं उनके पास करने को। और वो आपस में, मतलब हम लोगों से भी मिलते थे तो अपने साइन लैंग्वेज में, या वो छू के, जो ब्लाइंड बच्चे थे वो बात करते थे, और जो साइन लैंग्वेज में थे वो आपस में इतना बात करते थे जबकि हम उनकी भाषा को बहुत अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते थे। या आपस में बहुत भी बड़ी वो बात। इतना बात करते थे जैसे लगता था कि कितनी बातें हैं इनके पास, कितना हैप्पीनेस है इनके पास बांटने के लिए। बट हम नॉर्मल लोग एक दूसरे से बात करने में बहुत आंख चुराते थे। तो ये चीज हमने भी फील किया वहां पे कि या तो हम लोगों के अंदर वो ईगो बैरियर है, या हम लोग अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं, या कुछ ऐसा मेंटल हम लोगों की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात करने में परेशान होते हैं। तो ये चीज हमने आपने वहां पे फील किया कि बहुत खूब, जी सर। बहुत बड़ी बात कह दी मैम। इनफैक्ट आपने तीनों बातें जो बताई हैं, तीनों ही हकीकत में हैं। हम कहीं ना कहीं ये अनजाने में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। दूसरा, मेरे को लगता है कि मैंने आते जाते अगर कहीं पे देख लिया, बहुत छोटा सा उदाहरण है, अगर हमें लगा कि कोई बच्चा दिव्यांजन है और मैं थोड़ा सा उसका एक पल के लिए सहारा बन सकता हूँ, कॉरिडोर में चलते चलते थोड़ा उसको हम अपनी गति को, चलने की गति को थोड़ा स्लो करके, एक स्पेशल नीड के छात्रों को हम उसके साथ चल दें जरा धीमा धीमा, उसको तो जिंदगी भर याद रहेगा ये कि स्नेह मैम चल की जा रही थी, उन्होंने अपनी गति कम करके पीछे आ गई, चलो भाई हम तुम्हारे साथ चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो जो पल होते हैं, वो जो छोटे से पल होते हैं जहाँ पे हमने मुस्कुराहट से या एक हाथ देकर, एक कांधा देकर, कहीं पर हमने क्यों क्यों केवल दिव्यांजन क्यों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नॉर्मली डे टू डे इंटरेक्शन में क्या पता कि किसकी जिंदगी में, किसके मन में क्या गुजर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सबके साथ पूरा जो कॉरिडोर में 20 लोग मिलते हैं सबसे ही बात करिए, लेकिन कम से कम कोशिश तो की जाए। यहाँ तक कि सन्नाटा सन्नाटा कॉरिडोर्स में, सन्नाटा हॉस्टल के कॉरिडोर्स में बच्चों ने लिखत में दिया हुआ है
कभी कभी खौफता है। आप कभी कभी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, जाने माने इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्टल में जाइए तो ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कि यहाँ हंसना भी बड़ा बड़ा दुश्वार है। कभी लगे कि कोई जोर से अगर हंसी का आलम आ जाए तो लगता है कि ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान फैल जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा। ये क्यों है फिर? ये बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया है। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करके एक दूसरे से कनेक्टिविटी जरूर लेके आए, और हमको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा जो रात भर का ज्ञान है, मैं रात को पूरा पढ़ाई किया है, किसी से हंस के बात कर देने में, उसकी जिंदगी में थोड़े फूल खिले खिले गुलशन संभाल के ले आने में कहीं मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप जरूर इसका एक मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ईमेल पे मंत्रालय में भी भेजिए, फाजिया मैम को भी भेजिए, कुछ पॉइंटर्स ऐसे बनाइए, कुछ ऐसे उदाहरण लिखिए। आने वाले समय में इन प्रैक्टिसेस को मैडम एक कंपाइल किया जा रहा है। जो आप वेलनेस के ऊपर तो इंटर यूनिवर्सिटी डायलॉग चलना ही है, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इंटर यूनिवर्सिटी डायलॉग, गुड प्रैक्टिसेस अब होगा ही, क्योंकि इसका और कोई चारा रहा नहीं है। क्या हम दुनिया भर को केवल आंकड़े ही दिखाते रहेंगे? क्या हम दुनिया भर को यही बोलेंगे कि भाई 2001 में 6% सुसाइड से आज 12% सुसाइड हैं और आने वाले समय में 22% सुसाइड होंगे? क्या डेटा खाली रिसर्च में चलता रहेगा और लोग उसको, अपने डेटा को इस्तेमाल करते रहेंगे? होगा क्या इसका? होगा यही ना कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। घरों में देख लीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आपके और छात्रों के बीच में जैसे वार्तालाप होगा वो पारिवारिक परिवर्तन भी लेके आएगा। जब ये छात्र आपका जब घर जाएगा छुट्टियों में, वो अपने पारिवारिक माहौल में भी वही करेगा जो स्नेह मैम से सीखा है उसने, रीना मैम से सीखा है उसने, कहीं ना कहीं उदाहरण आपसे लिया है कि भाई जो भी चैलेंजेस हो, जैसा भी हमारा स्केड्यूल बिजी हो, हम अपनेपन को नहीं गंवाएंगे, हम अपनेपन के रिश्ते नहीं गंवाएंगे, क्योंकि उसी मूल्य मंत्र पे, उसी नींव पे तो हम टिके हुए हैं। और बचाई क्या है फिर? और ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स है। आप बताइए क्या रिसोर्स है इस वक्त? सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। पहले मंत्रालय का नाम भी तो HRD मिनिस्ट्री था ना जी। अगर HRD हमारा सरताज है, हमारा सिंबल है, हम HRD को ही हम आपसी ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्यों तरस रहे हैं? आपको पता होगा मैम, आप तो सब लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, यहां तक कि मैंने ये नोट किया है कि स्कूल के बच्चे हमारे पास आते हैं जब अस्पतालों में, छठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे, उनको ये ताजुब होता है कि घर में 4 जने बैठ के डिनर नहीं कर पा रहे हैं, और स्कूल में पाठ्यक्रम में ये चीज होता है, हैप्पी फैमिली, हेल्दी फैमिली, लिविंग फैमिली, लाफिंग फैमिली। तो बोलते हैं यहाँ तो सन्नाटा है, पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी बिजी हैं। And family tree also, sir. But the concept of nuclear family is always there. ट्रू, वेरी ट्रू, वो तो है ही मैम। लेकिन आप बताइए, न्यूक्लियर फैमिली भी खाली दीवारों से क्यों बात करे? दो लोग कम से कम आपस, माहौल तो कहते हैं ना कि हल्ला करने के लिए और जश्न करने के लिए 2 लोग भी बहुत होते हैं, कोई हमें क्राउड थोड़ी चाहिए, वो तमन्ना और मन होना चाहिए। बट आपने चर्चा का एक दूसरा एंगल आप दोनों ने बताया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रीता मैम कुछ कहना चाहेंगे अगर? सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, न्यूक्लियर फैमिली अपने आप में खराब नहीं है, उसके भी कुछ अपने मर्म है और उसको जीना पड़ेगा। और क्या? अगर जो और क्या? हाँ जी जीना पड़ेगा तभी। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली ही सभी समस्याओं की जड़ है, बस उसके जो मेन जो थीम है या उसके जो उद्देश्य है उसको लोग भूल गए हैं, क्योंकि उसमें इनफॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं समाज से जोड़ के रखती हैं, इन समस्याओं से दूर रखती हैं। थैंक यू। जी सर, बहुत अच्छा बताया। और देखिए, हर नए सिस्टम में, हर पुराने सिस्टम में थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमेशा ही रहेंगे ना। आज मनोचिकित्सक होने के नाते, क्योंकि शिक्षक प्रणाली में थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, आपको ताजुब होगा सर कि ऐसे भी फैमिली आते हैं जो हमें पूछते हैं आके कि हम ग्रैंड पेरेंट्स को वापस ले आए, हमें लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग कपल्स हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि अगर नाना नानी दादा दादी साथ रहेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, वो वापस ला रहे हैं।
पहले वो न्यूक्लियर फैमिली बन गए थे, अब उनको लेके आ रहे हैं। तो दादा भी बड़े मजाक में बोलते हैं अब हमारी जरूरत महसूस हो रही है लगता है तुम दोनों को। तो ये तो हम कहानियां रोज सुनते हैं और इस पर पिक्चर भी बन चुकी हैं। आप देखते हैं बागबान बनी थी, बड़ी सुंदर फिल्म कि किस तरीके से वृद्ध अवस्था में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, हम बड़ों को नहीं। मुझे लगता है हम अपना रास्ता गंवा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी सभ्यता में वो नहीं होना चाहिए जहाँ पे बुनियाद जो है वो पारिवारिक बुनियाद के ऊपर ही सब लोग खड़े हैं। आप सब उदाहरण है उस बात का, बहुत बड़ी बात है ये। और कोई कहना चाहेगा? ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम लोगों को बैक टू नेचर, बैक टू वेदास की तरफ करना पड़ेगा, यानी बैक टू डाउन अब होना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार हो सकता है अब हम लोगों के अंदर। और हो भी रहा है मैम, अच्छी बातें हो भी रही हैं, उदाहरण हो रहे हैं। यस, एनीबॉडी एल्स? आपने ठीक कहा रीता मैम के मैं तो लोगों को कहता हूँ सीधा कि आज आप अवसाद के शिकार हैं, आप बेचैनी, घबराहट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बीमारी के शिकार हैं। जरा नापिए कि आप कुदरत से कितने दूर हो गए हैं। कंक्रीट जंगल में रहने हैं, 4 दीवारों में जिंदगी कट रही है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिंदगी कट रही है। तो नेचुरली आपने बिल्कुल सही कहा, जो नेचर से अलग होगा वो अननेचुरल तो हो ही जाएगा ना। फिर जो कुदरत से दूर चला जाएगा वो तो अननेचुरल होगा ही। और अननेचुरल का मतलब ये हुआ कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हम मोल रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, बड़ी सस्ते में खरीद रहे हैं। आप ही बताइए कि महानगर में अगर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और अहमदाबाद में या हैदराबाद में बच्चों के डिप्रेशन या यंग लोगों की फैमिलीज में ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आंकड़े बड़े शहरों में क्यों है भाई? क्या मतलब फिर पढ़ाई का मकसद क्या हुआ कि तुमने अपनी जिंदगी को सूली पे चढ़ा दिया? डिग्रियां प्राप्त कर ली लेकिन जिंदगी को सूली पे चढ़ा दिया। बच्चे आके हमें ऐसे ड्रग्स के नाम सिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई आप तो आउटडेटेड हैं, आपको पता ही नहीं है कि जमाने में मौज मस्ती के लिए क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन समझाते हैं। तो मैं तो समझ गया कि भाई ये फॉरेन ड्रग्स यहाँ कैसे पहुंच रही हैं। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी मनी की कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर इन बातों से, सच्चाई से दूर होने का जो था, अब लग रहा है कि धीरे धीरे वो परिवर्तन आ रहा है। ये जो आप बातें बता रहे हैं ये सही में दोबारा परिवार उसका उपयोग करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम दोबारा सबक सीख कर शायद उस तरफ चल रहे हैं। You're right, it might take some more time. Sir, can we have the next slide? उसमें हो गया वैसे, लेकिन हम थोड़ी चर्चाएं चाहेंगे कि क्योंकि इन चीजों के जवाब, ये रेजिलियंस का तो आप लोगों ने, कई लोगों ने रिसर्च किया होगा। हम सब जानते हैं कि माई रेजिलियंस एंड योर रेजिलियंस इज अबाउट एडेप्टेबिलिटी, परिवर्तन के साथ जूझना। जैसा अभी साहब ने बताया, शैलेश साहब बता रहे थे कि हमें अडेप्ट करना ही होगा, न्यूक्लियर से लेके जॉइंट से लेके न्यूक्लियर, और वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम। हम कितना परिस्थिति को अडेप्ट कर सकते हैं, ये जीवन कौशल कब बताएगा कोई हमें? लाइफ स्किल्स की बातें स्कूल में हो रही हैं, लेकिन क्या वो कॉलेज में लागू हो रही हैं? जीवन कौशल शिक्षा स्कूल में हो रही है, करिकुलम में भी आई हुई है, लेकिन क्या उसका प्रैक्टिकल्स जो है क्या कॉलेज में इस्तेमाल हो रहा है? वो डिस्टेंस ज्यादा क्यों है? इसलिए तो लेवल 2 से लेवल 3 में प्रॉब्लम बढ़ती है। कीर्ति मैम, please mute your mic. माइक को म्यूट कर लीजिए कीर्ति मैम अगर। तो ये रेजिलियंस का डोमेन हमारे देश में बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है। ये सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल है। कहीं अपने छात्रों को, अपने स्कॉलर्स को बोलिए कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन नेचर, परिस्थितियों के साथ जूझने की ताकत, शक्ति और शिक्षा, कहीं ना कहीं ये क्यों ना हम और ऐसे डॉक्टरेट रिसर्च करें इसमें। हम क्यों ना फिजिकल रेजिलियंस रिलेटेड टू इमोशनल रेजिलियंस के बीच में जरा देखें। और क्या कहीं ना कहीं, अब देखिए योगा पे तो बहुत स्टडीज हो रही हैं, लेकिन हमारी मानसिकता का प्रभाव नेचर से, हमारी मानसिकता का प्रभाव इन्हीं बातों से जो आपने कहा है, इन टर्म्स ऑफ आर वी अ बेटर कम्युनिकेटिंग कैंपस, केयरिंग कैंपस, क्या ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे आने वाले 2 साल में कैंपस में फर्क पड़ेगा? ये बच्चे रिसर्च करें आपके सुपरविजन में। हम क्यों नहीं सोशल साइंस का रिसर्च, मैंने देखा है कई सारे IITs में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस भी है, हम क्यों ना सोशल साइंस का रिसर्च भी साइंटिफिक तरीके से इंजीनियरिंग में करें?
After all, engineering is also about living life in a more healthier and a happy manner, है ना? Next sir, आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो आपको एक इलास्टिक का पर्सनालिटी बनाते हैं ताकि आप अडेप्ट कर सके। मौसम बदलेंगे, ठीक है, सर्दी से गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा सर्दी, जैसे इसी साल में हमने देख लिया है। 2024 में गर्मियों से और सर्दियों के बीच का जो फासला है वो कई सालों से मुकाबला सामने आया है। बरसात का आया है, फ्लड आए हैं। क्या इंसान एडजस्ट नहीं कर रहा है? अगर बाहर की परिस्थितियों से सरकार हेल्प करती है कि हम एडजस्ट करें, तो हम अपनी अंदरूनी परिस्थितियों को क्यों धुतकार देते हैं? सो देयर इज अ रीजन, लेट अस टॉक टू द यंग पीपल। पीयर एजुकेटर्स कॉन्सेप्ट जो जीवन कौशल शिक्षा के लिए है, लाइफ स्किल्स थ्रू पीयर एजुकेटर्स, ये मैंने देखा है कि बहुत काम करता है। आप हॉस्टल में फ्रेंड्स कॉर्नर हैं, सारे हॉस्टल्स में कहीं ना कहीं शेयरिंग एंड केयरिंग कॉर्नर है। हर फ्लोर पे क्यों ना हो कि भाई एक सीनियर बच्चा और जूनियर बच्चा रात को सब लोग सोने से पहले सबको गुड नाइट बोलेंगे, जाएंगे कमरे कमरे में और एक अपनी परिवार की तरह, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई सोने से पहले मिलते हैं, जरा एक दूसरे को विश करते हैं। हम क्यों सन्नाटे में रहते हैं? हम क्यों सन्नाटा लगातार लेके आते हैं और कई हफ्तों तक एक ही फ्लोर पे छात्र दूसरे से मिलते ही नहीं है, बातचीत नहीं होती है। इन बातों को भी इंसेंटिव दिया जाए, शाबाशी दी जाए। मैं तो कहता हूं जो एक प्रो सोशल वातावरण हॉस्टल में पैदा करता है, उस बच्चे को महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार किसी फंक्शन में सर्टिफिकेट दिया जाए एप्रिसिएशन का। प्रो सोशल कोऑर्डिनेटर, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर, कुछ ना कुछ आइडियाज इतने अच्छे हैं, हम लोग उसको हम साइंटिफिक नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। ये साइंटिफिक है कि बोलना और कहीं ना कहीं कनेक्ट होना भी एक कला है, जो हम कलाकार इस तरह के जो हैं उनकी शाबाशी को भी ध्यान में रखें, वो इंसेंटिव उनको दें और वो एप्रिसिएशन करें। मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं फैकल्टी के लिए भी कह रहा हूँ। मेरे पास कई फैकल्टी आते हैं, हम लोग फोन पे बातें करते हैं, मिलते भी हैं, एंड देयर आर फैकल्टी इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, आपके जैसे बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही गुरु की तरह जो खिताब प्राप्त कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग तो प्रतीक हैं, आप रोल मॉडल हैं, मार्गदर्शन है आपका। कहीं ना कहीं क्यों ना हम थोड़ा सा रास्ता और भी चौड़ा कर ले जिंदगी का, जिसमें हम सब उनको बोलें कि भाई मिलके चलते हैं। ये कोई कंपटीशन की बात तो कभी कम होने वाली है ही नहीं। 40-50 साल में जाकर भी जब छात्र बाहर जाएगा, कंपटीशन का शिकार होगा ही। तुलना जो होती है, कंपैरिजन जो होता है फैमिली में या बाहर, हम इसके अलावा भी तो कुछ करें। हम ये भी तो करें कि हम कंपटीशन के अलावा हम कम्युनिकेशन भी करें और थोड़ा सा संवेदना भी लेके आए। इन मॉडल्स को रिकॉर्ड किया जाए, इन मॉडल्स को, जैसे अभी आपने कहा है, इन पर्टिकुलर तरीकों को रिकॉर्ड किया जाए और कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर में, अपने एल्मनाक में, अपने डेली रूटीन में, अपने कॉलेज के पेडागोजिकल टाइम टेबल में धारण किया जाए। आई एम श्योर इट इज देयर। ये देखिए, ये एडजस्टमेंट इश्यूज का कंपैरिजन अगर आप देखें तो कहीं पे ये इंडिकेटर्स अब हमें हेल्प कर रहे हैं। अगर आप देखें परसेंटेज कितना वेरी कर रहा है। सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए, सोशल स्किल्स की चर्चा चाहिए, क्योंकि सोशल स्किल हम में सब में, जैसा आपने बताया कि वो नेचर ने तो हमें दी हुई है। एक बेबी जब पहली बार, एक छोटा सा बेबी जब पहली बार माँ के हाथ से उंगली पकड़ के चलना सीखता है, कितनी खुशी होती है। बेवजह हंसता रहता है, बेवजह हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, उंगली चबाता रहेगा। हम बेवजह हंसने से क्यों कतराते हैं? आप बताइए। कभी कभी फॉर नो रीजन, इफ आई एम हैप्पी, लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब हंसना भी बड़ा गुनाह है फिर तो। मुझे लगता है कि हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, कभी कभी एकांत में अपने आप से बातें करनी चाहिए, अपने आप के लिए स्माइल करना चाहिए, आईने में देखकर बोलना भी चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैं अपने आप को स्माइल देता हूँ। क्यों ना? मैं सर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ सर। तो सर इसका अभी आप हंसने का कह रहे थे सर, इसका तो इफेक्ट सर क्लास में बहुत पड़ता है। अगर सर आपका मूड अच्छा है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, उनका भी मूड अच्छा ही होता है। मैं इन दिनों अपनी क्लास में जाता हूँ तो
एक तो थोड़ा सा मेरी हंसने की भी है, तो बच्चे थोड़ा सा फ्रेश महसूस करते हैं। फिर दूसरा ये है कि जब हम बच्चों से, और दूसरा हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चों के लिए। जैसे क्लास में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, तो टीचर क्या करता है कि जो बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं उन पे ही फोकस करते हैं, और बाकी सब बच्चों को क्या करते हैं कि उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट होने लग जाते हैं और वो और पूछना बंद कर देते हैं, उनका क्लास में होना ना होना एक जैसा हो जाता है। तो कई बार मैं खुद से, मैं ये नहीं कहता हूँ किसको आता है, मैं ये कहता हूँ मैं खुद से क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं देखता Right. हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन बच्चा समझ रहा है, कौन, और ज्यादातर बच्चे ऐसे पीछे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, कभी आगे नहीं बैठते हैं। तो मैं पीछे से ही पूछता हूँ किसी से रैंडमली। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे मतलब मुझे बताओ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं इतने टाइम खाली रहता हूँ, अगर कोई जना मुझसे यहाँ नहीं पूछ पाता है सबके बीच में, तो तुम मुझसे वहां पर जाकर पूछो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे इस टाइम जाके पूछो। मतलब बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ ऐसा कहता हूँ। फिर उसके बाद में क्या रहता है कि मैं एक मंथ में या फिर 15 दिन में एक दिन प्रेजेंटेशन में बच्चों को खुद बोर्ड पे बुलाता हूँ, कि उनको इसलिए बुलाता हूँ कि उनके अंदर से एक डर निकले, कि वो खुद से बोलना सीखें। अगर क्लास में भी पूछें तो खुद से पूछें, ये नहीं कि मैं बार बार उनको फोर्स कर रहा हूँ कि मुझसे पूछो, वो खुद से पूछें। तो कोशिश तो मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा करते हैं, और इसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम अपने सामने, हमारे सामने रखते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात बताई सर आपने, लेकिन आपने मेरी याद भी ताज़ा कर दी। हमें अपनी मैथ्स के टीचर से बड़ा डर लगता था स्कूल में, और वो डर पता नहीं आज तक कायम है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि वो साहब, पटना की बात है ये, और बड़े फेमस मैथ्स टीचर थे स्कूल में। कई स्कूलों में तरस जाते थे बच्चे कि वो साहब आके पढ़ाएं, लेकिन उनसे डर भी बड़ा लगता था। आपने ठीक कहा। लेकिन एक टीचर जो आज तक 30-35 साल के बाद भी याद आ रहा है, इसका मतलब उसकी इंसानियत ज्यादा याद आ रही है, टीचिंग कम याद आ रही है ना। और उसकी इंसानियत ये थी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई मैं तो अगले 3 घंटे में फुर्सत में हूँ, कोई मेरे साथ वॉक करना चाहता है तो आ जाओ, उस बैक साइड में जहाँ पार्क है वहां पे वॉक करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद हैं। हम तो कभी कैलकुलस या अलजीब्रा पढ़ते नहीं थे, आज याद आ रहा है कि भाई सर के साथ हमने वॉक नहीं करी, कुछ कमी रह गई हमारी जिंदगी में। आपने बहुत अच्छा कहा है सर। वो कनेक्टिविटी आप खुद जानते हैं, आप तो कैंपस पे टीचर हैं, फैकल्टी हैं, कि आप सब मिलकर एक संगठन फैकल्टी का क्या कर सकता है पहुंचने के लिए, उस मकाम पे पहुंचने के लिए जिसको हम तोल नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन दिल को छू सकते हैं। और सर अक्सर जो एनालिसिस हुआ है, अगर हम, थोड़ी खौफनाक बात है कि अगर हम, जो देश में सुसाइड्स हो रहे हैं युवा वर्ग के, जिंदगी बनने से पहले फना हो जा रहे हैं बच्चे, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, अगर कहीं पे उसका एनालिसिस होता है कि ये क्यों हुआ, 100% जो आप कह रहे हैं, जो मैडम बता रही हैं, नहीं मैम ने बताया, रीना मैम ने बताया, रीता मैम ने, सैलेश साहब ने, कारण यही है। कहीं वो अपने आप से तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन उम्मीदें थोड़ी सी जो माहौल से होती है ना, वो भी नाकामयाब रह जाती है। वो कहते हैं ना कि एक एक धागा भी मेरे को संवाद का कहीं ना कहीं मिल जाता तो शायद मैं रोक लेता अपने आप को। तो वो चीजें थोड़ा हम एक्सेस कर ले तो क्या हर्ज है। मुझे पूरा विश्वास है सर, क्लास के बाद भी बच्चे आपके पीछे भागते होंगे। सर बच्चे आते हैं सर, और काफी टाइम, मुझे तो लगता है टाइम कम पड़ जाता है मेरे पास। लेकिन बच्चे आप ये लोग है कि सब, अपनी हाँ, बात खुल के कह देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा सर, उनको ये भी तो विश्वास है ना कि अगर मैं राजू हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर आज घर में कुछ बड़ा कलेश चल रहा है मम्मी पापा के बीच में, वो बातें मेरे को पढ़ने नहीं दे रही है, उनको ये भी विश्वास है कि सर स्टाफ रूम में जाके किसी और को नहीं बोलेंगे। बिकॉज स्कूल में तो हम जो बच्चे, हमारा ज्यादा काम तो स्कूल्स में चल रहा है, कंप्लीट न्यू पॉलिसी के अनुसार स्कूल मेंटल हेल्थ, यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ। ताजुब होगा सर, बच्चे अपने, कल मैं यहाँ कोचिन में था सर, और करीब 100 से ऊपर पूरे कोचिन के स्कूल काउंसलर्स हमारे साथ थे, और वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं टीचर का और माँ बाप का जो रोल है वो अपने लाइफ में प्रथम चाहते हैं, प्रथम, लेकिन वो काउंसलर से क्या ढूंढ रहे हैं,
अपने मन की थोड़ी सी शिकायतें करने जाते हैं कि हमारे मन को भी अध्यापक और माँ बाप समझ लें थोड़ा, क्योंकि हम ऐसे परिवर्तन से जूझ रहे हैं। 13 साल की लड़की हो, 15 साल का लड़का हो, उनके जीवन में शरीर में परिवर्तन है, अट्रैक्शन है, करियर है, पास फेल का है, अपनी पहचान है, लुक्स हैं कि आज मैं तिल आ गया, मेरे चेहरे पे दाग आ गए, क्या ये मूल्य नहीं रखते थे हमारे लिए? क्या आईना मेरा क्लोज फ्रेंड नहीं होता था? जब आईना मेरी शक्ल ठीक नहीं दिखाता था तो बड़ा गुस्सा आता था। तो ये सब बातें अगर आज ज्यादा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स आते हैं ना मेरे चेहरे के, मेरे फोटो के ऊपर, और वो मेरे लिए कितना मूल्य रखते हैं, वो माँ बाप शायद समझ नहीं पाते हैं। तो टीचर भी अगर उस बात को समझ ले तो आपके काउंसलर्स का रोल भी कम हो जाएगा। मैं आज विश्वास से कह सकता हूं सर, एज अ साइकियाट्रिस्ट, कि टीचर इज द बेस्ट काउंसलर। और आपको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसा आपने उदाहरण दिया ना, यही बहुत है। वो कहते हैं ना कि चलते फिरते एक मुस्कुराहट भी आपकी 1 घंटे की काउंसलिंग कर गई। आपने किसी को कांधा दे दिया 2 मिनट के लिए ना, उसका 1 घंटे का काउंसलिंग सेशन के बराबर कर दिया आपने। वो हम अनजाने में क्यों ना कर दें? हमें ढूंढना क्यों मौका? आओ बहुत दिन बाद दिखे भाई, तुम क्लास में बोला करो, उसमें शर्मानी क्या बात है? आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू इज मैजिक। द फैक्ट दैट मैं तुम पर विश्वास करता हूं कि तुम भी कभी बोल लिया करो। और अगर तुमको लगता है तो ये तो हमसे बेहतर, मेरे से बेहतर सर आप ही जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि कौन से छोटे छोटे मोती बिंदु वाले नुक्से होते हैं जो जादू कर जाते हैं बच्चों के खेल में। क्योंकि सर आप ही बताइए ना, आंकड़े अगर इतने 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं 10 साल में, इसका मतलब ये तो नहीं कि पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ गई है, आंकड़े बढ़ गए हैं, ड्रग्स के हों या सुसाइड्स के हों। लेकिन हम ये क्यों जिद ना करें कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये हाई आईक्यू के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एक एंट्रेंस एग्जाम में और 20,000 सेलेक्ट होते हैं। उनमें ऐसी दुविधा कहाँ रह गई कि अपने आईक्यू से वो अपने इमोशनल वेलबींग को मैचिंग नहीं कर पाए? मैं तो डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। एक सपोर्ट की जरूरत है उनको। वो अपनी बातें कहीं कह नहीं पाते हैं, ना घर पे कह पाते हैं, ना टीचर से कह पाते हैं, अपने अंदर रखते हैं बातों को, और वही बातें बहुत एक बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है, जबकि इतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है। वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो आजकल के टाइम में टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो ये ध्यान रखे कि उसके क्लास में स्टूडेंट जो हैं कि कैसा उनका माहौल है, वो हंस रहे हैं कि नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ ध्यान है उनका, उन्हें कम मोटिवेशन की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है, इन सब पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सर, अब टीचर की बात हो ही रही है तो मैं अपने एक टीचर को बहुत देर से याद कर रही हूँ, अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर फरीद काजमी। ही इज द बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। उनकी इतना अच्छा पॉलिटिकल साइंस किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया, और वो अभी उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया। वो क्लास में जब भी क्लास शुरू करते थे सर, तो अपनी प्योर इलाहाबादी भाषा में बोलते थे, हमें आज क्या शुरू करना है बताओ। वहीं से हम लोग एकदम खुश हो जाते थे कि आज की क्लास, मतलब, और उनसे पढ़ने के लिए ऐसा लगता था कि हम लोग मतलब रिपीटेड क्लासेस में भी जाते थे। और जो आप कह रहे हैं ना कि बीइंग अ टीचर, आपको टीचर से ज्यादा आप एक काउंसलर हो सकते हैं, आप उसके अलावा उसके दोस्त हो सकते हैं। तो सब लोग उनसे यही बोलते थे कि सर आप रिटायरमेंट ले लीजिएगा, तो आप प्लीज, आप एक जगह कहीं बैठेंगे ना तो भी आपको सुनने के लिए हजारों करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि आप इतना अच्छा लोगों को मोटिवेट, वो 1-to-1 टॉक करते थे। और इवन क्लास में किसी भी क्लास और किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले वो हम लोगों से पूछते थे कि आज क्या पढ़ना है, आज प्लेटो को पढ़ना है तो कहाँ पे थे, तो चलो तुम बताओ। तो हम सेंटेंस ही शुरू करते थे, और उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से अपने विषय को किसी और विषय से कैसे जोड़ा जाता है, किस तरीके से हम लिटरेचर में उसको लेके जाएं। और वो सिनेमा के बहुत बड़े वो थे। और जब हमारे सिलेबस में एक पेपर था, हम तो अभी हम एनईपी पे बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सिलेबस में ऐसे सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि बच्चों के इंटरेस्ट से हो, जैसे सिनेमा हो गया, मीडिया का कोई पेपर हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों का एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, स्टेट इन सिनेमा, तो मास मीडिया इन सिनेमा करके। और वो हम डेरिडा और फूको से शुरू करते थे, और फिर हम उसको डीकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन तक ले जाते थे। तो जब सर ने इस पेपर को पढ़ाने के लिए कहा, तो सर एक्चुअली यहाँ पे रहते नहीं थे बहुत दिन तक, बीच में कुछ उनकी तबीयत खराब थी। तो सर ने बोला कि बहुत दिनों से वो पेपर ऑन पेपर था, कभी लिया नहीं सर ने। तो हम लोग उनके पीछे पड़े थे कि सर ये वाला पेपर पढ़ाइए, ये वाला पेपर पढ़ाइए। तो उन्होंने बोला कि क्यों पढ़ाऊं, तुम बताओ कि क्यों पढ़ाऊं मैं, क्या तुम लोगों के पास तो पेपर है ही, और पेपर पढ़ो जाके।
तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस तो बहुत पढ़ा हम लोगों ने, अब हम ये जानना चाहते हैं कि सिनेमा में कैसे स्टेट को समझेंगे, कैसे सिनेमा में पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे, बिना किताबों को कैसे पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे। तब उन्होंने हम लोगों को फिल्म दिखाना शुरू किया, उसमें उन लोगों ने फिल्म शुरू किया, उन्होंने मदर इंडिया से लेके और जिस्म 2 तक पूरा एक फेमिनिज्म का एक सर्कल दिखाया उन्होंने, और बताया कि उसके दिखाने का मतलब ये था कि एक फ्रेम को उन्होंने लिया और एक कि किस तरीके से इवॉल्व किया, स्टेट कैसे इवॉल्व किया, फेमिनिज्म कैसे इवॉल्व किया। तो मतलब हम सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ सकते हैं, उसको हम मीडिया और सिनेमा और अपने लिटरेचर में भी देख सकते हैं। तो उनके पढ़ाने का तरीका आज भी हम लोग को याद है, वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हम लोग उसको अपनी क्लास में डिकोड करते हैं, और उनके इतने फैन हैं, इतने चाहने वाले हैं, इतने स्टूडेंट हैं उनके, कि जहां भी रहते हैं वो हर उनके बर्थडे पे, हर उनके इस तरीके से याद करते हैं उनको, कि उन फरीद काज़मी ऐसा कोई और टीचर इस दुनिया में नहीं हो सकता है जितना अच्छा वो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, और जितना अच्छा उन्होंने पॉलिटिकल साइंस हम लोगों को बिना किताबों को समझना शुरू किया। जब हम लोग कभी पूछते थे कि सर ये वाला टॉपिक किस किताब में मिलेगा, बोलते थे हमें ये तो टुटाई किताब में मिल जाएगा, इसको किताबों से क्यों पढ़ना है, तुम अपने से सोचो कि व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज सॉवरेनिटी। तुम खुद से सवाल पूछो और खुद से सोचो कि ये क्या हो सकता है। किताब तो कहीं भी मिल जाएगा, चौराहे पे भी किसी छोटी किताब में ये टॉपिक मिल जाएगा तुमको पढ़ने के लिए, लेकिन खुद से सोचो कि ये क्या हो सकता है इसका मतलब। तो इस तरीके से वो हम लोगों को पढ़ाते थे। बहुत 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 ही गहरी और खूबसूरत बात बताई मैम आपने। इनफैक्ट आपने आज के सेशन का एक आई विश आज और टाइम होता, मैं तो थोड़ा फुर्सत में था जैसा शंकी साहब ने कहा, लेकिन सेशंस आगे चलने हैं। आपने जब फिल्म की बात कही, देखिए ये एक वो आर्ट है, फिल्म्स हो या थिएटर हो, जिसको हमने अपने टोटल कॉन्शियसनेस से गंवा दिया है, मैं तो कहूँगा गंवा दिया है। अगर आप मदर इंडिया से बात कर रही हैं, 2 बीघा जमीन है, या जो दुनिया भर की पिक्चर है, मुगले आजम में क्यों ना ले लें, रिश्तों के बारे में इससे बेहतर और एक प्रतीक क्या हो सकता है। और वो टीचर्स मुझे याद आ रहे थे जो स्कूल में भी फिल्म की क्लिपिंग के आधार पे 2-2 घंटे की वर्कशॉप करते थे और हमें ज्योग्राफी से लेके एनवायरनमेंट की बातें सिखाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने अवेलेबल रिसोर्सेज को जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में हैं, ठीक है, चित्र में है, सिनेमा में है, थिएटर में है, उसको हमने इतना पुराना कर दिया है कि नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। सो आई टोटली एग्री विद यू मैम। सिनेमा एज अ कल्चर, सिनेमा एज अ मॉडर्न कल्चर, इवन ओल्ड फिल्म्स टू बी ब्रॉट इनटू 21st सेंचुरी लर्निंग, और कौन सा सब्जेक्ट से नहीं हो सकता है। अगर अब अभी तारे ज़मीं पे या 3 इडियट्स कैन बी यूज्ड इवन फॉर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, कि भाई ये नहीं है कि मशीन की डेफिनेशन क्या थी जो प्रोफेसर साहब आमिर खान से पूछते हैं, ये जरूरी था कि वो मशीन का एप्लीकेशन जिंदगी में क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट छात्र चाह रहा है, नहीं तो रटने वाला तो एक किताब में से रट के अपने मार्क्स तो अव्वल ले आएगा। आपसे बड़े यहाँ पे सब जो बैठे हैं, आप तो सबूत जानते ही हैं कि आज के आपके छात्र कौन सक्सेसफुल हैं, कौन खुश हैं। बच्चे तो ये आके बोलते हैं, मैडम सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। I may be successful, but I don't seem to be happy. But if I'm happy, then definitely I'm successful. Because ultimately वो तसल्ली वाले बच्चे जो आज बड़े हो गए हैं, कहीं मुकाम पे पहुंच चुके हैं और आपके वापस आके आपके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं, वो बच्चे वो हैं शायद जो क्लास में एवरेज थे, और वो बच्चे हैं जो शायद सर ने बताया ना कि बैक बेंचर थे, उनको जिंदगी का नुक्सा मिल गया, भले वो टॉपर नहीं रहे होंगे, लेकिन ये भी तो है कि उनसे भी आज हम सीख लें कि भाई उन्होंने ऐसा क्या जुगाड़ किया कि वो दुविधाओं को जूझते हुए आगे चले गए, परेशानियों को जूझते हुए। और यहाँ पर वो 120 IQ का बच्चा है जो हमेशा टॉपर रहा, लेकिन कठिनाइयों से जूझ नहीं पाया और फना हो गया। तो आई थिंक आपके पास तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टीचर्स 10 बच्चे की जिंदगी उनकी बगैर नाम लिखे हुए, कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल आपके जो हैं उनके बारे में जरूर आप कहीं वो केस स्टडीज इकट्ठे करिए, बिकॉज एक एग्जाम्पल देने के लिए नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है ये बातें। एनीवे, बहुत कुछ अभी हमारे देश में शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी UGC है और आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन चर्चाओं को एक रेगुलर चर्चा स्टाफ रूम में कैसे रहे। मुझे तो लग रहा है आज हम सब स्टाफ रूम में बैठे हैं और ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग बातें करेंगे तो शायद छात्रों तक पहुंचेंगी, छात्रों के साथ बातें होंगी तो शायद संविधान बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो पढ़ा ही लेंगे हम,
एक साल में जो सिलेबस है वो पूरा करेंगे। जिंदगी को जीने के जो तत्व हैं वो हम पूरे कभी नहीं कर पाएंगे तो पछतावा रह ही जाएगा। So I can only say that I'm sure Fazia ma'am would be wanting to take on the next session. ये जो कुछ बातें हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेंटर से ये स्लाइडें मंगवा लीजिएगा। कुछ चीजें सोच समझ के बनाई गई हैं। कैंपस पे किस किस तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं आपने ऑलरेडी बता दिया है। अब फैकल्टी के लिए क्यों ना, देखिए अभी एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था टीचर्स मेंटल हेल्थ, और वो कोई कम आंकड़े नहीं मिले हैं उसमें। आपके सबके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप जब पीटीएम में जाते हैं तो कभी देखा है कि टीचर का हाल क्या होता है? कई टीचर्स रोती हैं पीटीएम्स के बाद कि आज का दिन तो बहुत बुरा गया, क्योंकि कई पेरेंट्स टीचर्स को डांट भी देते हैं। आपने हमारे बच्चे को कहा कि वो बुली है। तो ये जो पेरेंट्स और टीचर, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ बाय द वे, पेरेंट्स और टीचर्स का जो एक ब्रिज है ना, वो बच्चा या तो मजाक उड़ा रहा है या बच्चा भी बड़ा संकोच में है कि भाई ये दोनों के बीच का सद्भावना कब रहेगी। हमने रिपोर्ट कार्ड डे को अगर और खुशी का डे बनाना है ना, तो हमको टीचर्स को रेस्पेक्ट करना होगा पहले तो। देयर आर प्रिंसिपल्स, मैं जानता हूं, जो पेरेंट्स को बहुत पोलाइटली बोल देते हैं कि आप पीटीएम में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारी टीचर्स को आप सम्मान देंगे और बच्चे के सामने उनको धुतकार कुछ नहीं करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। तो ये चीजें बच्चा वो मूल्य शिक्षा कब सीखेगा आगे के लिए? अपने स्कूल से सीखेगा, तभी तो कॉलेज में आके ये बातों की महत्व समझेगा ना, जो आपने उदाहरण दिए हैं। एक दो लास्ट कोई और फाइनल कमेंट्स जो आप आज का प्रोग्राम, आज का सेशन एंड से पहले आप कोई संदेश देना चाहेंगे प्लीज? सर मैं कुछ मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी टीचर्स में भी बहुत स्ट्रेस होता है, तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम टीचर्स के लिए भी कोई टूर या कोई ढंग से विजिट का प्रोग्राम हो, हम लोग सारे टीचर्स मिलके कहीं पूरी कॉलेज का जो भी मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है, इस ढंग का कुछ प्रोग्राम करें कि टीचर्स को कभी पूरे सेशन में एक बार रिलैक्स मिले, कहीं बाहर जाए, आउटिंग के लिए जाए। हैप्पी हार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल, कि कहीं के लिए भी कहीं विजिट हो। मैं तो नोट कर रहा हूँ। आप ये बता दूं, जो अभी ये जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट हो जाता है कभी होंगे मैम, होंगे, ये जरूर होंगे। हैप्पी आवर्स का आपने बताया, एक रिट्रीट जो कहते हैं आप, और अपने टीचर्स के एनुअल जनरल हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं, उनके अपने मन की बातें होती हैं, टीचर्स के अपने पर्सनल फैमिली सोशल चैलेंजेस होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अपना करियर बनाते हैं, व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन के तालमेल में संकट होता है। ये बातों के लिए भी तो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। आप कॉलेज में आके टीचर्स भी नेचर बाहर जाए, क्योंकि वहीं पे वही लोकेशन से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अगर थोड़ा सा आउटिंग होगी तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है अभी, है ना? नहीं होता है सर, रेगुलर तो सर होता भी नहीं, बट जैसे कोई एक पूरा सेशन में एक बार टीचर को अगर बाहर विजिट करना, वेरी नाइस सर Dr. Nagpal will speak and you will listen and you will speak, Dr. That the show will go on and on and on. It's सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक और practical thing. It's a practical thing. We'll have, inshallah we'll have. We know it very well. ये हमें पहले से पता था कि नागपाल जी आएंगे and he will steal the complete show. So, Faiza ma'am already spoken to Dr. Nagpal and he will give us another session, inshallah. Participants, we only have got 15 minutes in between. Now 10 minutes are finished. Only 5 minutes are left for the next session. Dr. Nagpal, you have given us very, very, very good session. Very good. कुछ नहीं किया मैंने सर, मैंने खाली सुना है। मैंने आप लोगों की राय ली है और मेरा फर्ज बनता है। मैं थैंक यू सर सो मच।